were those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Good evening to all. Warm greetings in the name of our Lord Jesus Christ. As we all know, that we are remembering our beloved Tirumeni on his 97th birth anniversary. I would like to say few lines about late lamented Stephanos Mar Theodosius Tirumeni. Mar Theodosius, the rising son of the North Indian villages, the architect of Calcutta diocese. His Grace was born in an ordinary family as the fifth son of Mr. Kurian Chaco and Mrs. Mariama Chaco on 2nd October 1924 in Pathamuttam, Kottayam. He was ordained as deacon and priest by His Holiness Geevargis II the Catholicos. His Grace started his services from Jabalpur in Madhya Pradesh as the parish priest in 1952. In 1960s, he studied in the United States, receiving a BD from General Theological Seminary, New York in 1966 and STN from Barclay Divinity School at Yale University in 1967. The General Theological Seminary awarded him a honorary DD in 1990. When Tirumeni arrived in North India as a young priest with high ideas and ambitions, he recognized poverty and superstitious practices prevalent in the villages. To combat these hurdles, his remedy was to impart quality education to the society at large. This realization dawned upon him made the setting up of the school alongside churches. His Grace was the first bishop of Madras Diocese in 1975 and became the first bishop of Calcutta Diocese in 1979. Tirumeni was the director of St. Thomas Orthodox Church Mission, one of the prior mission outside the Kerala. In 1984, a new history in the mission endeavors, the Malankara Orthodox Church was made by opening of Makkodia Village Development Center. Tirumeni had established many schools and colleges. On 5th November 2007, on the episcopal visit to Muscat, St. Gregorios Orthodox Church, His Grace was called to heavenly abode. On 8th November 2007, His Grace was interred at St. Thomas Ashram Chapel, Bhilai. देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। मैं सेतु संतोष आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाया। स्वाधीनता आंदोलन में वे कई बार जेल की सजा भुगत चुके थे। शास्त्री जी ने एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका संपूर्ण जीवन ही देश की सेवा में बीता। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। उनका दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व 1965 के युद्ध में देखने को मिलता है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया बल्कि सेना को माकूल जवाब देने की पूरी छूट दी। परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में करारी मात दी। आज हम शास्त्री जी के जीवन, उनके विचार, उनके संघर्ष, उनके विस्तृत आयाम और देश को नई दिशा देने में उनके योगदान की चर्चा करते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी था। 1928 में शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी से हुआ। शास्त्री जी जब 18 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की।
उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। पंडित नेहरू जी के देहावसान के बाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने देश की बागडोर संभाली। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए इन्होंने कठोर कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित युद्ध थोप दिया। शास्त्री जी ने बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को युद्ध के लिए तैयार किया। शास्त्री जी ने सेना को दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता सेना को दे दी। अपने नेता का पूर्ण समर्थन पाकर सैनिकों ने दुश्मनों को करारी मात दी। श्री शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु के लगभग 18 महीने वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें प्रमुख रूप से 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का असहयोग आंदोलन उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री जी द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। देश उनकी राष्ट्र भावना, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ही भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। लंबाई कम लेकिन कद बहुत ऊंचा, एक ऐसी शख्सियत जो आज हर हिंदुस्तानी को अपने विचारों से प्रभावित करता है। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकेगा। धन्यवाद। Be the change that you wish to see in the world by Mahatma Gandhi. Good evening to one and all. Today we are here to celebrate Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi is the man of the millennium. Mohandas Karamchand Gandhi, called as Bapu, was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father was a high official of Porbandar and his mother Putli Bai was a religious woman. Gandhiji was an average student, but he derived the modesty from his father and moral through his mother's stories such as Satya Harishchandra highly influenced Gandhiji to lead a principled life. At age 19, Gandhiji went to England to become a lawyer. After returning to India, he practiced law in Bombay. At age 24, Gandhiji married to Kasturi Bai. While being in South Africa, which is dominated by Europeans, Gandhiji often felt the discrimination against the Indian. On one such occasion, he was forced to give up his seat in first-class compartment to a European. When refused, he was beaten up and thrown out of the train. This proved to be the wake-up call for a Gandhiji to fight against the suppression.
he soon found out of the way to revolt, and that is called Satyagraha, the force of truth. When Gandhiji came back to India, the country was under the British rule, so he immediately joined the freedom movement. He introduced his style of non-violence and non-cooperation. Gandhiji was against the social evils, such untouchability with such qualities. He was rightly called as Mahatma the Great Soul. On one such occasion in 1948, as Gandhiji completed 2 days hunger strike in New Delhi, he was shot dead by Nathuram Godse. Though Gandhiji was no more to lead the nation, but his principle and character has always shown the best way for the leaders to follow. So on this occasion of Gandhi Jayanti, let us enjoy the performance of our tiny tots. मैं महात्मा गांधी हूँ। पहले लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर लोग आपको हंसेंगे, फिर लोग आपसे लड़ाई करेंगे, फिर आप वो लड़ाई जीत जाओगे। Then they ignore you, then they laugh at you, then they ignore you. नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को गांधी जी के बारे में 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाई जाती है। वो एक देशभक्त नेता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जयंती हमारे भारत का एक तीसरा राष्ट्रीय पर्व है। वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता तथा बापू के रूप में जाने जाते थे। Empire Satyagraha, it was the first movement led by Mahatma Gandhi. It was a farmers' fair uprising that took place in Tantaran district of Bihar in India during British colonial period. Farmers are protesting against having to grow indigo with burying any payment for it. The protest and hunger strike ultimately ended with the abolition of cultivation of indigo. Thank you. Khilafat movement was started by Mahatma Gandhi along with Shaukat Ali and his brother. Mahatma Gandhi's intention was also to unite Muslims and Hindus by helping Muslims so that Swaraj in India can be attained. Thank you. Non-cooperation movement was organized by Mahatma Gandhi to induce the British government of India to cross self-government of Swaraj to India. It was one of the Gandhi's first organized act of college, Sky Civil Disobedience Satyagraha.
सत्याग्रह। Salt Satyagraha, the Dandi March, also known as Salt Satyagraha. It started from Samanti Ashram to Dandi. It was non-violence act led by Mahatma Gandhi. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। The India movement was an important milestone in the Indian freedom struggle under the leadership of Gandhiji. People across India came together to uproot British Empire on 9th August 1942. Gandhiji gave clarion call of do or die to all Indians to drive away Britishers from the country. This day is celebrated as August Cranti Day every year. राष्ट्रपिता है गांधी जी, महात्मा है गांधी जी, साबरमती के संचित कहलाते हैं गांधी जी। बिना सर से उठाए देश को आजादी दी, अहिंसा की राह पर चले सदा गांधी जी। जय हिंद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पर आई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पर आई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। I am singing a song, देते हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। देते हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। आंधी में बिजली रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। देती हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग लड़ाई, गांधी ने कोई तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर बिना के खून जलाई। हमारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। बेटी हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजबूर चल पड़े और किसान चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों से छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संगत ने कर दिया कमाल। गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का हैप्पी बर्थडे। टुडे आई एम गोइंग द मेक द चरखा।
Always speak the truth. Let the change begin with you. Truth to yourself. Believe in love. Think before you act. Live to learn. Be positive. Learn to forgive. Be true to yourself. Care for our mother earth. आजादी बिना बिना खड़कदार सागरपति के संतन ने तूने कर दिए कमाल रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के 3 बंदर है नटखट और सुंदर। पहला कहता बुरा मत देखो, दूसरा कहता बुरा मत सुनो, तीसरा कहता बुरा मत बोलो। तो हम गांधी जी के बंदर जैसा काम करेंगे। हम गांधी जी के 3 बंदर हैं नटखट और सुंदर। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। न रोबीली काया, न व्यवस्थित कपड़े, बस घुटने भर की धोती और गोल फ्रेम का एक साधारण चश्मा और हाथ में छड़ी थामे तेज तेज चलने वाले महात्मा गांधी ने लोगों के दिमाग पर ऐसी छवि छोड़ी कि जिसका आधुनिक भारत के इतिहास में शायद ही कोई उदाहरण हो। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी और उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अभी आपने हमारे स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने विभिन्न प्रकार के आंदोलन थे वो और उनके बचपन की छवि देखी है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी के दिखाए हुए पथ पर ही चलकर हम आज देश की उन्नति और समृद्धि की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।